हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 10 हमारा चल रहा है कोनिक सेक्शंस। इनमें कोनिक सेक्शंस में 4 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं। पहला सर्कल, दूसरा पैराबोला, तीसरा एलिप्स, चौथा हाइपरबोला। तो इसमें हमारा 2 सेक्शन हो गए, कोनिक सेक्शन 2 हो गए, सर्कल एंड पैराबोला। तीसरा है इलिप्स। इलिप्स में हमने लेक्चर दे दिया आपको, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स बताया, किस टाइप का फिगर इलिप्स है। ओके, उसकी इक्वेशंस का प्रूफ भी बता दिया आपको। एंड फोकस, वर्टिसेस, लेटस रेक्टम आज आपको प्रूफ बताएंगे। ओके, लेटस रेक्टम का। नाउ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। इलिप्स इक्वेशन का प्रूफ हो गया। आज लेक्चर 8 है, लेक्चर 7 में इसका प्रूफ हो गया। ओके, नाउ इसमें आपको ये इलिप्स की एक फिगर है, फिगर में देखिए आप, ठीक है, सी द फिगर। ओके, एंड रिमेंबर दिस लेटस रेक्टम। व्हाट इज लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम इज ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है। कैसा सेगमेंट? जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक एक्स एक्सिस है यहाँ पर इस इलिप्स का, इस पर परपेंडिकुलर होता है लाइन सेगमेंट एंड पासिंग थ्रू द फोकस। तो जैसे पी क्यू है फिगर में, इन फिगर पी क्यू। ओके, तो डेफिनेशन हो गई, द लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस ऑफ इलिप्स, एक्सिस ऑफ इलिप्स पर परपेंडिकुलर है एंड पासिस थ्रू फोकस पॉइंट, passing through focus point, okay, is called latus rectum। ये डेफिनेशन होगी। तो यहाँ फिगर में क्या है? इन फिगर लेटस रेक्टम PQ, PQ लेंथ। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ of latus rectum, that is PQ. How can find this? See in the figure, P lies on the ellipse path. तो जनरल पॉइंट x, y कोऑर्डिनेट, O is the center of the ellipse, we know. So coordinate of focus we know, plus minus c, 0 on x-axis. तो c पॉजिटिव साइड I am taking this, तो c, 0 f2 फोकस। तो डिस्टेंस OF2 हो गया c एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस PF2, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस जनरल। तो x कोऑर्डिनेट हो गया c, y कोऑर्डिनेट y, तो cy। तो मींस डबल ऑफ y विल बी द PQ। तो PQ विल बी द 2y। ओके बेटा, this y coordinate. So we have to find y and put here. How can find? Putting this point in the equation of ellipse, because this is on the path of ellipse. So putting c, y, putting this point P point c, y in equation of ellipse. Okay, what is equation of ellipse? Along x-axis, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. So putting this x, y, x is c, y is y. So putting this value, then c square, x is c, c square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Okay, then simplify this and putting the value of c. What is the value of c? We know eccentricity of the ellipse E is equal to c upon a. We know this, ठीक है, बिकॉज इसेंट्रिसिटी। तो देन यहां से c की वैल्यू क्या बन गई? c इज इक्वल टू
A into E. E is the eccentricity. So put this value C here, then it will come C value AE, then A square E square. This is C square upon A square. Okay, beta, is plus Y square upon B square is equal to 1. Put this and then now solving. Find the value of y from this. So this term take this side. Y square upon b square as it is, and other side take this term. A square cancel. So 1 minus e square. E is the eccentricity. Okay. So y value, y square is equal to b square in multiply. So b square into 1 minus e square. Okay. Then y value we have to find. Then square root of this and a की फॉर्म में हमें लिखना है. क्या आपकी वैल्यू आपकी ये e की फॉर्म में आ गया. दिस इज y इज इक्वल टू b स्क्वायर स्क्वायर रूट both side square root of b into square root of 1 minus e square. ओके बेटा. नाउ e की वैल्यू क्या पढ़ेंगे. इसेंट्रिसिटी c अपॉन ac. But here this relation we know in ABC, that also important. So ABC relation, c square is equal to a square minus b square. A square minus b square. A is the largest in ABC. ठीक है. This यानी a square is equal to b square plus c square. So c square is a square minus b square. This value we can use. Okay. But c square you put ae. So then what is again c here? It will be c value ae. Okay. Then you can say same thing this. Then eccentricity की फॉर्म में आपका y आ गया. y is this. Okay. Now if you want to remove e, then y is equal to b into square root 1 minus e square. E means c square upon a square. C square upon a square. Understand? Which value? E. E value c upon a. तो c square upon a square. तो 1 के साथ एल्शियम लेके सॉल्व किया. तो what will come this? Simplify this. This will be b into square root एल्शियम then a square minus c square upon a square. Okay. Then this y is equal to b upon a square root a square is a and square root of a square minus c square. So a square minus c square. You can put here a square minus c square is b square. So b square is equal to a square minus c square. Okay. So this value we can put here. A square minus c square is b square. Then into b square, square root b square. Then it will come b. Then it is b square upon a. Y.
then it is 2y, then 2 into y, y is b square upon a square, so then 2 into b square upon a only. This is your latus rectum. So length L is equal to PQ is equal to twice into b square upon a, b square upon a. This is your latus rectum length. Done. Okay. So be careful about this latus rectum. Now question we have to do forward. Haji beta. Yes. Next question. Question number 3 from the exercise 10.3. Question number 3. Okay. Now x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1. Find the focus, eccentricity, vertex, latus rectum. Okay. We have to find everything. Now we have to solve it and compare with x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. Okay. A here solution. A square is equal to 16. Then this implies square root both sides. Then a equal to 4. Okay. After that, similarly, b square is equal to 9 by comparing. Then this implies b equal to 3. Okay. This. Now C also we have to find because eccentricity we have to calculate. So C is equal to C square is equal to a square minus b square in ellipse. We know as this relation we know. So here this implies C square value is equal to a square is 16 minus b square is 9. Okay, then 7. So C is equal to square root 7. This is focus at this much distance from the origin in right hand and in left hand. Two foci. So foci, this implies foci of this ellipse. सबसे पहले हमने focus लिखने. Okay. Foci plural. तो foci is equal to x axis पर है तो प्लस माइनस c, 0. ये फोकस के कोऑर्डिनेट होता है. वी नाउ so then this is equal to what? C root 7. तो प्लस माइनस रूट 7, 0. दिस इज द फोकस. पहला आंसर मिल गया आपको. सेकेंड फोकस के बाद वर्टेक्स सेम है. इसेंट्रिसिटी okay means E. Eccentricity means E value. We know formula C upon A. It is ratio distances from center to the focus and the distance from center to the vertex. C upon A. Then value of C here root 7. Okay बेटा, distance सब positive रहेगी and A is 4. This is your E. Second point. Third point, latus rectum. Okay. And major axis, minor axis also. So major axis, x axis है यहाँ पर major axis.
okay, is equal to 2a, और a here 4, तो 4 2 जा 8, done. Minor axis, okay, minor axis 2b, okay, that is b is here 3, then 2 3 जा 6. These are both answers done. Now what left? Eccentricity हो गया, major axis, minor axis, focus, then latus rectum, okay, latus rectum, ठीक है, length of latus rectum, that is here L is equal to 2b square upon a. अभी इसका प्रूफ बताया हमने फॉर्मूले का, ओके, पुट हेयर वैल्यू, b वैल्यू हेयर, b स्क्वायर हेयर 9, 2 into 9 upon a is here 4, then simplify, 2 to the 4 and then 9 upon 2. Answer, this is latus rectum. Everything done, clear? Major axis, minor axis, foci, okay, latus rectum and eccentricity. Next question. हाँ बेटा, next question, question number 4, question 5. Okay, question 4, x square upon 25 plus y square upon 100. अब greater number a होता है. We know because a is greater than b. Okay, because ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये ए बन गया, तो कौन सी इक्वेशन से कंपेयर होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बिकॉज ए इज ग्रेटर होता है, तो अलोंग वाई एक्सिस हो गया ये, अलोंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलोंग वाई एक्सिस. अब अलोंग वाई एक्सिस है तो फोकस ऑन वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, तो कंपेयर किया, कंपेयरिंग, तो क्या बन गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 10, ओके, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू हियर 25, clear, then b is equal to here 5. So these a b value we got, then c also we should find, then c square one relation we know, a square minus b square, okay, then this is equal to a square is 100 minus b square is 25, then 75. तो c is equal to square root 75, 5 5 जा 25, 25 3 जा, तो 5 root 3, 5 root 3, this is c, okay. So now use everything, so focus, अब along y axis focus, तो फोकाई क्या बन गया? फोकाई. अब y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 प्लस माइनस c, दिस इज फोकाई, तो दिस इज इक्वल टू क्या बन गया? 0 कोमा c वैल्यू 5 रूट 3, तो प्लस माइनस 5 रूट 3, क्लियर, दिस इज योर फोकस.
done. After that, first point done. Second point, vertices. Okay, vertices. वर्टिसेस हमारा 0 0 ओरिजिन होता है हमेशा आपके सिलेबस में, ठीक है। अदरवाइज फॉरवर्ड कहीं और भी हो सकता है। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, हमेशा मेजर वही होगा 2a। अब वो एलोंग वाई एक्सिस है वो, तो 2 इंटू ए इज 10 देन 20। ओके, नाउ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस 2b होता है, और b यहां पर कितना है, b वैल्यू यहां 5 है, तो 5 2 जा 10। तो ये दोनों एक्सिस हो गए। अब इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C अपॉन A, ठीक है। C कितना है हमारा, C हमारा है 5√3, ओके, अपॉन A हमारा है 10, 5 2 जा 10, देन √3 अपॉन 2, ये आंसर हो गया। इसेंट्रिसिटी ये भी हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, L, लेटस रेक्टम twice b square upon a, then लेटस रेक्टम 2 इंटू बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है 5, तो 5 स्क्वायर 25, बी स्क्वायर इज 25 अपॉन ए हमारा है 10, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 2 सिंप्लीफाई, देन ओनली 5, तो लेंथ इज 5। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर को 49 प्लस 36 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 30, ग्रेटर कौन है 49, तो ए एक्स के नीचे है, तो अलोंग इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी अगर ए जो ग्रेटर नंबर है वो एक्स स्क्वायर के नीचे है तो अलोंग एक्स एक्सिस, अगर ग्रेटर नंबर वाई स्क्वायर के नीचे है तो अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर दैट। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हियर 49, then this implies a equal to square root 49, 7, okay, then b square is equal to 36, कंपेयर करके, then b value square root 36 means 6, okay, clear। now c square also find, then c square is equal to ए स्क्वायर लार्जेस्ट होता है इसमें, वी नो दिस रिलेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या रिलेशन जानते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बन गई ए स्क्वायर हमारा 49 माइनस बी स्क्वायर है 36, देन 13, ओके 13, देन सी इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट 13। क्लियर।
तो हमारा सी आ गया। अब सी के बाद हमें फोकाई लिखना है। फोके कितने हो गए? सो फोकाई प्लूरल होता है, दो फोकस होते हैं। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो प्लस माइनस सी कोमा 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया? सी इज √13, तो प्लस माइनस √13 कोमा 0। दिस इज द फोके वर्टिसेस। ओके, वर्टिसेस तो 0 0 होता है। ओके, 0,0 आपके सिलेबस में 0 पर ही। ठीक है, ओहो वर्टिसेस, सॉरी वर्टिसेस 0 0 नहीं है बेटा, वो तो पैराबोला के हैं। इसमें क्या हो? प्लस माइनस a,0, तो प्लस माइनस a,0, then this is equal to a is 7, तो प्लस माइनस 7,0, ये वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, फोकाई हो गया, वर्टिसेस हो गया, इसेंट्रिसिटी ई is equal to c upon a, eccentricity. Then this implies eccentricity equal c value √13 upon a. A is 7, ये eccentricity हो गया। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस इक्वल टू ए, माइनर एक्सिस टू बी। ए इज 7, तो 2 7 जा 14, और बी वैल्यू इज इक्वल टू 6, तो 6 2 जा 12। माइनर हमेशा छोटा होगा। ओके, वो बी होता है। डन, तो एवरीथिंग डन। तो नाउ बी केयरफुल, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है लिख का? प्लस माइनस a,0 ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस है, तो देन 0, प्लस माइनस a। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 इज 1। अब 400 इज ग्रेटर देन 100, तो a स्क्वायर इज 400, तो इट इज along y axis, it is along like this you should see। ठीक है, लार्जर नंबर किसके? along y axis। अब along y axis हमें मालूम हो गया। ठीक है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग ही फोकस आएगा एवरीथिंग। तो आपका ए स्क्वायर कितना हो गया? कंपेयर किया, ए स्क्वायर इज 400, ए स्क्वायर इज 400, then a is equal to square root 400, 20 20 400। ठीक है, ए आपका आ गया 20, और बी स्क्वायर कितना है यहाँ पर? 100, तो देन बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 110, this, then c square relation we know, c square is equal to a square minus b square। okay, this equal a square 400 minus b square 100, then equal 300, then square root both side, then c equal to 10√3। okay, 10 into 10 into 3,
ये आपका सी हो गया, डन, स्क्वायर रूट। देन फोकाई वाई एक्सिस पर है, अब वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी, ओके। देन दिस विल बी इक्वल टू 0, सी वैल्यू 10√3, तो प्लस माइनस 10√3, दो फोकस होते हैं, ठीक है, एक प्लस साइड एक माइनस साइड। इसी तरह वर्टिसेस भी दो होते हैं, तो वर्टिसेस इसीलिए प्लूरल, वर्टिसेस क्या होता है वर्टिसेस। अब ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस अपर वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड प्लस माइनस ए, ठीक है। तो ये कितना बन गया 0, प्लस माइनस ए इज 20, डन, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद सी ई इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है, सी इज √10√3 अपॉन ए इज 20, तो सिंप्लीफाई 10 2 जा 20, देन इट इज √3/2। This is eccentricity. Now major axis and minor axis. Major axis and minor axis. मेजर एक्सिस हमारा बन गया 2a, ए कितना है a 20, 20 2 जा 40, एंड ये बन गया 2b एंड b हाउ मच 10, 10 2 जा 20. So these are the major axis, minor axis. Now let us select rectum. L is equal to 2b square upon a, this formula. Then 2 into b square. B square is 400. Sorry. B square is 100. B square is 100. So 2 into 100 divided by a. A is 20. 2 10 ja 20 and 10 से 0 finish, then only 10. This is your lattice rectum answer. So like this everything we have done. Similarly next question, okay. हाँ yes बेटा, next question, question number 7. Divide by 144 this, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, तो 36 डिवाइड बाई 144 एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 4 अपॉन 144 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ सिंप्लीफाई, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 24, 4 6 जा 24, ये 4 9 जा 36 और 4 3 जा 12, 4 6 जा and 9 4 जा. So this implies x square upon 4 x square upon 4 और ये प्लस y square upon 36 इज इक्वल टू 1. तो किसके नीचे ग्रेटर है, वाई स्क्वायर के नीचे है, तो जो ग्रेटर नंबर जिसके नीचे है अलोंग दैट ओनली, तो इट इज अलोंग वाई एक्सिस, इट इज अलोंग
वाई एक्सिस। ओके बेटा, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36. This implies a is equal to 6. Then b square is equal to 4. Then this implies b equal to 2, square root of 4. Now c square is equal to a square minus b square. A square is 36 minus b square is 4. Then it is 32. Then square root both sides. Then c is equal to 4 4 ja 16, 16 2 ja 32, 4 root 2. This is c. Now foci ये along y axis है, तो x कोऑर्डिनेट 0, फोकस y एक्सिस पर है, along y axis, तो प्लस माइनस c, दिस इज फोकस. तो दिस इज इक्वल टू 0, c वैल्यू 4 प्लस माइनस 4 रूट 2. दिस इज योर फोकस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, वर्टिसेस. ओके, वर्टिसेस आपका अलोंग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड प्लस माइनस ए वर्टिसेस. सो ये कितना बन गया 0, प्लस माइनस ए इज 6. दिस इज योर vertices. Done. After that, major axis and minor axis. Major axis, length of major axis and minor axis. Okay. Major axis is 2a and minor axis is 2b. Then 2a means a is here 6, 6 2 ja 12, and 2b means b is here 2, 2 2 ja 4. These both. Now eccentricity E is equal to c upon a. So c is here 4 root 2 divided by a. A is here 6. So to simplify, 2 2 ja 4, 2 3 ja 6. So 2 upon 3 into root 2. This is eccentricity. Latus rectum L is equal to 2b square upon a. Then 2 into b square. B square here 4. 4 2 ja 8 upon a. A is 6. So 2 4 ja 8, 2 3 ja 6. 4 upon 3. Length of latus rectum. Eccentricity. Done. Clear? Everything done. So similarly, next question you can do 8th question. Okay. 9 question I am trying. हाँ यस बेटा, डिवाइड बाय दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 9x square plus 9y square 4x square plus 36. Then divide by 36 to make the standard form. Then 4 upon 36 x square plus 9y square upon 36 is equal to 1. Then this implies 4 9 ja 36. तो x square upon 9 plus 9 4 जा 36, तो y square upon 4 is equal to 1. ग्रेटर नंबर x square के नीचे है, so it is along x axis. It is along x axis.
अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आपका ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 3 हो गया, 3 स्क्वायर 9 होता है। एंड बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो बी कितना हो गया, स्क्वायर रूट 4 इज 2, बी हो गया 2। देन सी स्क्वायर फॉर्मूला भी नाउ इन द इलिप्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो गया हमारा 9 माइनस बी स्क्वायर हमारा कितना है 4, देन दैट इज 5। सो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5। ओके, ये सी हो गया। देन फोकाई, सो फोकाई क्या होता है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, प्लस माइनस सी कोमा 0 वाई एक्सिस पर है, तो कितना बन गया प्लस माइनस रूट 5, सी की वैल्यू रूट 5 कोमा 0। डन, ये फोकस हो गया। सेकंड पॉइंट, वर्टिसेस। ओके, तो वर्टिसेस का फॉर्मूला, ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो प्लस माइनस ए कोमा 0, ये वर्टिसेस हो गया, तो प्लस माइनस ए इज अवर 3, तो प्लस माइनस 3 कोमा 0, ये वर्टिसेस हो गया। इसके बाद मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस इज 2a, माइनर इज 2b, 2a की वैल्यू, a इज 3, तो 3 2 जा 6, एंड 2b, b वैल्यू 2, 2 2 जा 4 यूनिट, ये आपके दोनों ये हो गए। ओके, इसके बाद ई सेंट्रिसिटी, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी वैल्यू हमारी रूट 5 अपॉन ए इज अवर ए 3, दिस इज इसेंट्रिसिटी। नाउ लेटस रेक्टम L is equal to 2b square upon a, then b square कितना है, b square 4, 4 2 जा 8 अपॉन a कितना है यहाँ 3। डन, ये लेटेस्ट रेक्टम होगा, तो एवरीथिंग डन, क्लियर। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट, और उनको जरूर भेजें जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, और उनको गाइड करो कि लाइक करने से पहले आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको लिंक मिल जाएंगे 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास के, जिस वीडियो को देखना चाहते हो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो, वो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। बट पहले सब्सक्राइब करो, ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते ही आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और आप फीडबैक जरूर भेजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।